السلام علیکم، اکانومی میٹرز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شاہزیب احمد۔ سب سے پہلے شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹس معاہدے کے تحت سعودی عرب سے مزید $1 ارب موصول۔ $2 ارب کی رقم پہلے ہی مل چکی ہے۔ مالی معاونت سے ملک کے زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہوں گے۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز۔ سپر ٹیکس میں بتدریج کمی بھی کی جائے گی۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدہ بروقت اضافہ لازمی قرار۔ اور حکومت کا $25 کروڑ مالیت کے مزید یورو بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ۔ عالمی مارکیٹ میں یورو بانڈز کا مجموعی حجم $1 ارب ہو جائے گا۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق ضرورت پڑنے پر جون سے پہلے مزید بانڈز کا اجرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں غیر ملکی کرنسیز کا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں روز کی طرح آج بھی 1 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت $278.90 پر آ گئی ہے۔ پھر یورو کی بات کر لیتے ہیں تو یہ 8 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ پھر برطانوی پاؤنڈ بھی 12 پیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سستا ہوا، جس کے بعد اس کی قیمت $376.39 ہو گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ کو دیکھیں تو سونے کی قیمت میں دوسرے روز بھی کمی دیکھی گئی۔ فی تولہ $1000 سستا ہوا، قیمت $5,01,62 پر آ گئی ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت کو دیکھا جائے تو $857 کی کمی دیکھی گئی۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ذکر کریں تو گولڈ $10 فی اون سستا ہوا ہے، جس کے بعد اس کی قیمت $4,778 پر آ گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے IMF کی پاکستانی معیشت پر نئی رپورٹ کی۔ عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ کی صورتحال نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ GDP گروتھ میں 6% کمی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ IMF کی رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس کے مطابق پاکستان کا 4.2% معاشی ترقی کا ہدف ریئلسٹک نہیں ہے۔ توانائی کی سپلائی چین متاثر ہونے سے معیشت متاثر ہوگی۔ اگر اثرات کی بات کریں تو مہنگے تیل کی درآمد سے پاکستان کا امپورٹ بل بڑھے گا، جیسا کہ ہم مسلسل کہہ بھی رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھ سکتا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، انڈسٹریل گروتھ میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک اور ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک نے بھی پاکستان پر معاشی خطرات کا ذکر کیا ہے۔ پھر مشرق وسطیٰ کشیدگی سے معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر ایکسپورٹس کی بات بھی کر رہے ہیں تو مارچ میں ہی 14% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ہماری ایکسپورٹس میں۔ لیڈنگ ایکسپورٹ سیکٹر ٹیکسٹائل کی برآمدات میں بھی 7% کی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں گورنمنٹ کے لیے معاشی ترجیحات کا اثر نو تعین ضروری ہو چکا ہے۔ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز پر نظر ثانی کرنی اب پڑے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر فہیم الرحمان سہگل صاحب اور معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر ناصر اقبال صاحب، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شکیل احمد کی خصوصی رپورٹ۔ مشرق وسطیٰ جنگ نے پاکستان سمیت پوری دنیا کا معاشی منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان رواں مالی سال معاشی شرح نمو 4% سے زائد رہنے کے لیے پر امید ہے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی نے تیل کی قیمتوں اور سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا۔ پاکستان جیسے تیل درآمد کرنے والے ملکوں پر اس کا براہ راست اثر سامنے آ رہا ہے۔ درآمدی بل اور مہنگائی میں اضافہ اور صنعتی سست روی بڑھ رہی ہے۔ ان حالات میں IMF نے رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 3.6% اور اگلے سال مزید کم ہو کر 3.5% رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ حکومت نے اس سال GDP گروتھ ریٹ کا ہدف 4.2% مقرر کر رکھا ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے IMF کا کہنا ہے رواں سال گرانی 7.2% اور اگلے سال بڑھ کر 8.4% تک جا سکتی ہے۔ پچھلے سال مہنگائی کی شرح 4.5% کی کم سطح پر تھی۔ البتہ بے روزگاری اس سال 7.1% اور اگلے سال کم ہو کر 6.9% پر آ جائے گی۔ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی GDP گروتھ 3.5%، جبکہ عالمی بینک نے اس سے بھی کم یعنی 3% تک محدود رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ADB کے مطابق آئندہ سال شرح نمو بڑھ کر 4% ہو جائے گی، لیکن مشرق وسطیٰ جنگ طویل ہونے کی صورت میں پاکستان کی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ زرعی اور صنعتی پیداوار میں کمی اور بیرون ملک سے ترسیلات زر کم ہو کرنٹ اکاؤنٹ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان سمیت تمام ممالک پر اخراجات پر کنٹرول سمیت معاشی ترجیحات کا اثر نو تعین کرنے پر زور دیا ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ شکیل احمد کی خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ناصر اقبال صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ سے آغاز کروں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو موجودہ صورتحال ہے، ظاہر ہے پاکستان کے لیے خطرات بہت بڑھا دیے ہیں اکانومی کو لے کر۔ IMF کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے جو خدشات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں GDP گروتھ میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پھر ورلڈ بینک، ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ایسے خطرات کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور جو GDP گروتھ کی حکومت بات کرتی ہے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کو ریئلسٹک لگتا ہے؟ آئی تھنک گورنمنٹ اس پہ آلریڈی کام شروع کر دیا جب سے یہ جنگ کی سچویشن ڈیولپ ہوئی پچھلے 50 دنوں سے۔
गवर्नमेंट एग्रेसिवली अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देख रही है, और जो अभी आप जीडीपी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स एक नॉर्मल सिचुएशन में ग्रोथ की प्रोजेक्शन की गई थी कि हम 4 पॉइंट से ऊपर जाएंगे। अब जो रिवाइज फिगर जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, आईएमएफ है, या इवन वर्ल्ड बैंक और इवन पाइड ने अपने भी कुछ प्रोजेक्शंस किए हैं जिसमें थोड़ी सी रिडक्शन ज़रूर आई है, बट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है। गवर्नमेंट इफेक्टिवली उन तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है जो कि इस जंग की वजह से हमें फेस करने पड़े। स्पेशली आपने अपने इंटरव्यू में भी बताया जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट का हमें मेजर इशू फेस करना पड़ेगा। आपकी ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ होगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ने का ख़तरा है जो कि ऑफ कोर्स बढ़ेगी जब आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिन पे गवर्नमेंट सोच भी रही है, और इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसी ऑप्शंस पे भी गौर कर रही है, जिसमें लेकिन नासिर साहब वो ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि एफडीआई में तो हमारे इंक्रीज नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं मुसलसल कमी हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं। फिर साथ में जो अखराजात हैं हुकूमत के, वो भी हुकूमत ने अब तक कम नहीं किए हैं। एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, उसमें मुसलसल कमी आ रही है, तो जीडीपी जो है वो ज़ाहिर है इसी पर ही इन्हिसार करती है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट दो फ्रंट के ऊपर इसको डील कर रही है। एक तो अगर आप एक्सटर्नल फ्रंट देखें तो गवर्नमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करके अपने रिज़र्व को बेहतर बना रही है, जिसमें आपको सबसे बड़ा जो चंक अभी नज़र आएगा जो KSA ने आपको सपोर्ट किया $3 बिलियन USD। तो ये एक एक्सटर्नल फ्रंट है। डोमेस्टिक फ्रंट पे गवर्नमेंट एक जो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रही है, जिसमें मैसिवली ये जो वर्क फ्राम होम की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएगी, प्लस जो है एनर्जी सेविंग एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगी। ये तमाम मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। अब मेजर इशू जो अपकमिंग क्वार्टर में गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा, उसको वो कहाँ से मीट करे। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला कट लगाया आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिसको अगर आप PSDP के नाम से जानते हैं, तो उसमें मेजर कट लगाया गया है। और वो किसको देगा? गवर्नमेंट ने जो आवाम को सब्सिडाइज़ किया है फ्यूल इन टर्म ऑफ प्राइस एडजस्टमेंट। तो गवर्नमेंट इन तमाम चीज़ों को देख रही है। जो मेजर चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा वो जैसे आप बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो इस पे हमारी और गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कशन हुई हैं कि एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इसी पर हम बात कर लेते हैं। फ़हीम रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, सबसे पहले आगाज़ हम यहीं से कर लेते हैं इसी बात से कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जाएं। मुसलसल इसमें कमी हो रही है, सनतों के लिए इस वक्त क्या इक़दाम करे हुकूमत? सबसे पहले तो देखेंगे इस वक्त हमारा इशू जो है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट एक दफ़ा फिर 28 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गए। अब इसकी दो सूरतें हैं, इसको बैलेंस को या इस गैप को कम करने के लिए। या तो हम अपनी इनकम इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वो बढ़ाएं, या अपनी जो एक्सपेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट वो कम करें। लेकिन जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो ये बताती हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है तकरीबन 8% कम हुई है, और हमारा जो इंपोर्ट है वो 6.5% बढ़ गया है। तो दोनों चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक हद तक ये जो शो कर रही हैं कि ये हमारा ट्रेड डेफिसिट मज़ीद बढ़ जाएगा। तो अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए हमारी मुख्तलिफ तजवीज़ जाती रहती हैं गवर्नमेंट को। लेकिन एक बात जो हमारा क्रॉनिक इशू है, जिस पे हम बार बार हर फोरम पे और हर वक्त यही बात करते हैं कि जब तक हमारा पावर का टैरिफ कम नहीं होगा, हम रीजनल कंट्रीज़ में कंपेटिटिव नहीं होंगे, और फिर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी ग्रेजुअली गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। आप यानी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और इस पावर टैरिफ के साथ आप अपनी एक्सपोर्ट को किसी सूरत नहीं बढ़ा सकते। फिर देखें दुनिया में हमारा जो हमारा क्रॉनिक इशू, उसकी कुछ वजूहात हैं। देखा, हमारा जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ऑयल बेस्ड है। हम फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते हैं, तो ऑयल की तो इस वक्त दुनिया में प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये आने वाले दिनों में हमें मजीद जो है ये प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बचने के लिए हमें देखें ना, एक तो रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमें बड़ा एग्रेसिवली उनकी तरफ मूव करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो कुदरती हमारा एक जो पोटेंशियल रखा हुआ है, हाइडल जो बिजली जो हम पैदा कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इस छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर बनाकर उससे बिजली पैदा की जा सकती है। वो दुनिया में कम कीमत बिजली जो है हमारे पास अवेलेबल जो इलेक्ट्रिसिटी वो दूसरा हमारा इस वक्त 8000 मेगावाट तक हमने आपने देख लिया, आपके पास पोटेंशियल है ये आपका सोलर का। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम इन चीज़ों के अपने क्रॉनिक इशू को हाईलाइट नहीं करेंगे, नई मार्केट तलाश नहीं करेंगे,
नहीं जो अपनी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हम आप वैल्यू ऐड नहीं कर सके अपने प्रोडक्ट्स में। फहीम साहब एक बात तो क्लियर करें, हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं गवर्नमेंट और ज़ाहिर बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। रिसेंटली हमने देखा कि बिलाल रज़ा कियानी उन्होंने FECCI को विजिट भी किया, वहाँ पर मुलाकात भी हुई, बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ बैठी और उन्होंने बात की कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। लेकिन इस हुकूमत को अब तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, क्या अब तक, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं ये हुकूमत के आने से बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये बातें हो रही हैं, क्या अब तक कोई एक डिमांड ही पूरी नहीं हुई या हुकूमत कोऑर्डिनेशन में है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाकई प्रोवाइड किया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी को? देखें जी, ऐसा इस वक्त तो कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमें तरफ देखें, सबसे इस वक्त तो बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा इशू है ना, वो इन्फोर्समेंट का है। आपने इस वक्त जो फिजा पैदा की, आपको पता है ना, आपने अभी FPCCI में हमारे मिनिस्टर साहब ने जाके बड़ी आसानी से कह तो दिया कि हम ये जितने डायरेक्ट कुछ बंदे उठा लेंगे तो जितना आपका बाहर जो कैपिटल ड्रेन हुआ था वापस आ जाएगा। ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन कभी आपने उन इश्यूज को हाईलाइट किया, ये कैपिटल गया क्यों? तो आप ऐसे क्यों एनवायरनमेंट क्रिएट क्यों नहीं करते कि हमारे मुल्क में वो ईज ऑफ डूइंग, जिसकी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो आप बात कर रहे हैं, उसके पैरामीटर जितने बेहतर होंगे, आप जो है ना टैक्स कलेक्शन के जो अपने टारगेट हैं उनको अब अगर आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुशावरत से करें और आप इन्फोर्समेंट का एलिमेंट, जो टैक्स कलेक्शन होती है ये हमेशा फैसिलिटेशन के जरिए होती है। बिजनेस कम्युनिटी तैयार है, आप किसी बिजनेसमैन से बात करके देखें कि वो टैक्स नहीं देना चाहता, बिल्कुल देना चाहते हैं। सिर्फ इख्तलाफ वहां आता है कि ये टैक्स कैसे देना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो काम है, हम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो चैम्बर्स हैं, हमारा काम यही है कि हम गवर्नमेंट को वो मेथड बताएं, वो तरीके बताएं जिसके वजह से हमारा टैक्स नेट बढ़ जाए और जो है गवर्नमेंट का भी टारगेट पूरा हो जाए और अच्छे तरीके से हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो आसानियां पैदा करने वाले अवामिल हैं उनको गवर्नमेंट अडॉप्ट करे। बिल्कुल नासिर इकबाल साहब, आप भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ज़ाहिर है अगर हम चाहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हमारी सनतें काम करें, इंडस्ट्रीज़ हमारी चलें, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना होगा। फिर ज़ाहिर है इस वक्त सारा जो बोझ है, जब टैक्स की बात कर रहे हैं इस वक्त फ़हीम रहमान साहब, सारा बोझ हमारा सैलरी तबके पर आता है, उस बोझ को भी हमें डिवाइड करना होगा, सबको टैक्स, जो हमारा टैक्स नेट है उसको ब्रॉडन करना होगा। अगर यही हम स्ट्रक्चर ठीक कर लेते हैं टैक्स का, तो बहुत सारे हमारे हदफ भी पूरे होंगे और हमारी ओवरऑल जो बेहतरी है इंडस्ट्रीज़ की वो भी आएगी। आई थिंक ये वो रिफॉर्म एजेंडा जिस पे गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से बड़ा अग्रेसिवली काम कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अग्रेसिवली काम किया जा रहा है, जिसमें वन विंडो ऑपरेशन, SIFC का क्याम, ये सारे वो बैरियर्स हैं जो कि इस मकसद के लिए बनाए गए कि हम अपने बिजनेस सेक्टर को फैसिलिटेट कर सकें। टैक्स में रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, जिसमें टैक्स नेट जब ब्रॉडन की बात की जाती है तो वहीं पे हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो उसमें रिलक्टेंट क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट तमाम फ्रंट के ऊपर काम कर रही है। गवर्नमेंट इस वक्त मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि हम बिजनेस सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर सके, क्योंकि हमारा असल इशू एक्सपोर्ट सरप्लस क्रिएट करना है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, नो इट्स अप टू द प्राइवेट सेक्टर के वो भी इसमें चिप इन करे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ को रीविजिट करे। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, मिडल ईस्ट इस वक्त अवेलेबल है हमारी एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि तमाम फैसिलिटीज़ के बावजूद हमारा प्राइवेट सेक्टर, हमारी बिजनेस कम्युनिटी सरप्लस। तो इस वक्त ये एक जॉइंट एफर्ट की जरूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट इसमें फैसिलिटेशन के लिए तैयार है, अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी कोई प्रपोजल लेके आता है। लेकिन नासिर साहब, जब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारी जो सनतें हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, पावर के भी मसाइल हैं, एनर्जी के मसाइल तो हैं ही, फिर टैक्स के मसाइल भी हैं, और हम कब से ये कहते आ रहे हैं कि रीजनली कंपैरेटिव हम नहीं हैं। तो फिर जो हुकूमत इस वक्त काम कर रही है, वो आपको क्या लगता है कि हम कब रीजनली कंपैरेटिव हो सकेंगे? अगर हम इस सूरत हाल को निकाल भी दें जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है, इससे पहले भी हम ना रीजनली कंपैरेटिव थे और ना आने वाले वक्त में लग रहा है कि अभी तक कोई हुकूमत ऐसा कुछ कर रही है आपके ख्याल में? बिल्कुल, गवर्नमेंट, देखिए हम सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट पे डाल देते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही और गवर्नमेंट एनर्जी की प्राइसेस को रिड्यूस नहीं कर रही। आप ये बताएं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसने अपनी जो प्रोडक्शन चैनल्स हैं उसको कितना अपग्रेड किया, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि तमाम की तमाम सब्सिडी जैसे तमाम सेक्टर्स को अवेलेबल है टू सम एक्सटेंट। एनर्जी में सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, और ओपन मार्केट में आपको फैसिलिटेट भी कर रही है। नो, द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द ओनली गवर्नमेंट, इट्स ऑल अबाउट हाउ द बोथ साइड्स कैन ज्वाइन
in term of creating a surplus. Look at the Chinese example. वहाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, फैसिलिटेशन मैकेनिज्म दे रही है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है, अनइंटरप्टेड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, बट ऑन द अदर साइड इनोवेशन कौन कर रहा है, आपका प्राइवेट सेक्टर, मार्केट कौन सर्च कर रहा है, आपका प्राइवेट. दिस इज द वे. अभी हमने गवर्नमेंट जो क्योंकि वी आर सिटिंग एट द फेडरल लेवल, हम जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने एफबीआर को रिफॉर्म्स किया, गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेंथन किया, कंपटीशंस को इम्प्रूव किया. इसके अलावा गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे काम कर रही है, जो कि इवन आईएमएफ की अंडर कंडीशनैलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट. उसके बावजूद गवर्नमेंट एक्सटेंसिवली इन चीज़ों पे काम कर रही है. नो, इट्स अप टू द प्राइवेट सेक्टर. स्टिल अगर उनकी कोई ऐसी रिजर्वेशन है जिसमें कि गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर सकती है, बट कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, कंपेटिटिव होने के लिए. आपका पॉइंट ये कि फैसिलिटेशन के बावजूद, हम ब्रेक के बाद से बात करते हैं कि फैसिलिटेशन बावजूद बिजनेस कम्युनिटी क्यों कतराती है और क्यों हमारे इन्वेस्टमेंट में इजाफा नहीं हो पा रहा है, क्यों अभी तक कितने सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिजनेस कम्युनिटी को. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक. फ़हीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा. जैसा कि नासिर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत फैसिलिटेट भी कर रही है जितना वो कर सकती है और एक इन्वायरमेंट भी पैदा कर रही है. फिर ये जो हुकूमत खलीजी ममालिक की मौजूदा सूरत हाल है, उसको देखते हुए जो वहाँ पर पाकिस्तानी है और उनका सरमाया है वो वापस लाने पर काम तो कर रही है, लेकिन वजूहात क्या हैं कि वो सरमाया वापस पाकिस्तान नहीं आ पा रहा, या क्यों कतराती है बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से इस वक्त? देखिए, मैं वही फिर बात अपनी दोहराऊंगा, यहाँ पे तो कोई फैसिलिटेशन की तो बात ही नहीं हो रही. मैं कह रहा हूँ कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड रीजनल कंट्रीज में, जो आपके रेट जो टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का, हमें वो दे दें, या हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दूसरे रीजन में वो दे दें. तो इस बहस में जाने से पहले देखें, कारपोरेट सेक्टर का अगर आप टैक्स लगाएं तो ये मोर देन 55% बन जाता है. तो ये दुनिया में कहीं इतना टैक्स नहीं है. ये जो दुबई इन्वेस्टमेंट गई थी, जो कि नहीं जानी चाहिए, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों का पैसा अगर वहाँ पड़ा है तो वापस आना चाहिए, हम इस बात के हक में नहीं है. लेकिन देखें, ये जो बिजनेस, जहाँ पे भी इसको अच्छे इन्वायरमेंट मिलेंगे, बिजनेसमैन ने वहाँ चले जाना होता है. तो वहाँ पे दुबई की अगर आप बात करते हैं तो वो सिर्फ वो जो था ना, उन्होंने वैट लगाया 5%. तो इसके अलावा उनका वहाँ पे कोई टैक्स नहीं था, एनवायरनमेंट अच्छे थे, सिक्योरिटी थी. तो ये सारी वहाँ पे चीजें, अभी भी पैसा वहाँ से वापस लाना इस वक्त बेस्ट हमारे पास मौका है, और किसी तरीके से हम वो पैसा वापस आ भी रहा है. फ़हीम साहब, हम कह सकते हैं कि अब सिक्योरिटी पाकिस्तान में है लेकिन यूएई में नहीं है. जी, उसका पोल देखें, उस पोल, हम उस बात से खुश नहीं है. वो सिक्योरिटी का पोल तो हमने खोल लिया, यानी एक छोटा से वहाँ पे धमाके हुए हैं, तो सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो है इस वक्त वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, मसला ये है कि इस मौके से हमने फायदा कैसे उठाने. अब हमें फौरी तौर पे वहाँ पे जो जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है वो आपको बिल्कुल सही. फ़हीम साहब इस हवाले से ऐसे बात भी कर रहे हैं. नासिर साहब, मैं आपका, ज़ाहिर है जो सूरत हाल की वो बात कर रहे हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट निकलेगी, और अगर हमने सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो वही इन्वेस्टमेंट कुछ और ममालिक में जा सकती है. तो एक तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए एक साजगार माहौल तो प्रोवाइड करना है. सेकेंडली नासिर साहब, पाकिस्तान में पहले भी बेरोज़गारी की शरह रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है, हम देखते हैं, और GDP में भी अगर मज़ीद कमी होती है तो ये अदाद शुमार कहाँ तक पहुँच सकते हैं? इस पर आपका क्या कमेंट है? आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है. जैसे अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो बड़े मेजर इशू हैं हमारे. अगर सिग्निफिकेंट हमारी GDP ग्रोथ में कमी आता है, जो कि अगर आप वर्ल्ड बैंक और उनकी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, तो इससे हमारी पॉवर्टी भी बढ़ने का ख़तरा है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का भी ख़तरा है. बट उसके ऊपर भी गवर्नमेंट, क्योंकि अब ये नंबर ओपन हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 2 माह होने वाले हैं जंग की सिचुएशंस को, तो गवर्नमेंट के इसके ऊपर रियलाइजेशन है कि GDP में जो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स प्रोजेक्शन के 4 पॉइंट्स को हम शायद टच ना कर सके, बट इफ़ वी आर अराउंड 3.5, 3.6, इवन 3.8, स्टिल हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी. स्टिल हमें अपना जो वो सोसाइटी जो अंडर पॉवर्टी लाइन है उनको फॉर्मली किसी न किसी एंगल से सपोर्ट मैकेनिज़्म के थ्रू उनको हमें सपोर्ट करना होगा. दूसरा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उससे भी जो हमारी पॉपुलेशन हिट होती है, वो आपकी लोअर 40% जो पॉपुलेशन है वो हमेशा हिट होती है जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है. तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को एक ऐसा सपोर्ट पैकेज बनाने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो अपकमिंग बजट है उसमें गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करना होगा कि ऐसी स्कीमें लॉन्च करे जिससे आपकी
एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन वो जैसे अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर से बात करें, एक फैसिलिटेशन मैकेनिज्म बनाना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये काम है कि ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलप करे जिसमें हर बंदा बिजनेस डेवलप कर सके। तो इसके लिए हमने गवर्नमेंट को सजेशन दिए हैं कि हमें अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें आसानियाँ पैदा करनी होगी, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को प्रमोट करना होगा, और हमें जो टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमें अब फ्यूचर की डिमांड है उसको हमें देखना होगा कि इस वक्त जीसीसी में किस किस्म की आने वाले 1 साल में डिमांड क्रिएट होगी, हमें उसको मीट करना होगा। पाकिस्तान में किस तरह की डिमांड क्रिएट होगी, हमारे नेबरिंग कंट्री में चाइना बैठा है, उसकी डिमांड्स क्या है, उनकी डिमांड्स को हम कैसे मीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टास्क होगा हमारे लिए। लास्टली फ़हीम रहमान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो इस वक्त हम देख रहे हैं सूरत-ए-हाल बनती हुई, ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका पायदार मुआहदा हो जाता है, हम उम्मीद करते हैं तो उसके बाद कशीदगी तो कम हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है उसके जो असरात हैं वो भी पाकिस्तान पर रहेंगे। इस वक्त जितने मसाइल हैं या जितनी प्रॉब्लम्स हम इस मशरक़ वस्ता की जंग से पहले देख रहे थे, ज़ाहिर है उन मसाइल में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या तजावीज़ हैं आपकी इस वक्त हुकूमत के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो पैक्ट हो रहा है, ये मुआहदा या सालसई हो रही है, इसका ओवरऑल पाकिस्तान पे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जिस तरह इस मसले को हैंडल किया है, तो इंशाल्लाह ये हमारी मुआशी तरक्की का भी समाव बायस बनेगा। लेकिन हमें फौरी तौर पे जो इस वक्त करने के काम है, जैसे नासिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जो बेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। तो हमें फौरी तौर पे ये अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को जो है ना उसको उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम हमें ज़रूर करने चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन बनाने चाहिए, मुख्तलिफ क्लस्टर बनाने चाहिए हमें अपनी जो SMEs को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेहतरीन मौका है हम अपने मुल्क में ये मौके पैदा करें। और इस वक्त जो गल्फ की सूरत हाल है, आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त फूड सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, और अपनी लोकल जो डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की वहाँ बढ़ा सकते हैं। बड़ा यानी सुनहरी मौका है बहुत। और इस वक्त हम इस हवाले से भी नेगोशिएट कर सकते हैं अमेरिका से कि हमारा टैरिफ अमेरिका में कम किया जाए, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका को बढ़ा सकें। और दूसरा, मौके पे फ़ायदा उठाते हुए जो हमारा गैस की पाइपलाइन ईरान और पाकिस्तान की जो इस वक्त उस पाइपलाइन का जो मुआहदा है उसको एग्जीक्यूट करें, ताकि हमारे मुल्क का ये जो बेसिक एनर्जी का मसला है उसको भी हम हाईलाइट कर सकें। तो ये इस वक्त बेस्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हम डाइवर्सिफाइड मार्केटों को ट्राई करें। आसियान कंट्री में और सेंट्रल एशिया में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पे हम काम करें तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पोटेंशियल है। IT सेक्टर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ज़ाहिर हम जब टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ तो हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल इस वक्त डिमांड है वो कम हुई है, लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी दीगर ममालिक की है उसको दूर कर सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर। रहमान सहगल साहब और डॉक्टर नासिर इकबाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने शो में वक्त दिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।